ہم نے نہیں کی، بلا وجہ بکواس نہیں کرو میرے ساتھ۔ نہیں، میں آپ سے لڑائی نہیں کر رہی، میں تو پیار سے بات کر رہی ہوں۔ بہت آ گیا تمہارا پیار، بس نہیں بات کرو۔ میرا بیٹا باہر جا کے اچھی جاب کرے گا اور اسے اتنی اچھی جاب ملے گی، پھر تم دیکھ لینا۔ بلا وجہ باتیں نہیں بناؤ۔ پھر کیا؟ ٹونی کی مما چپ کر جاتی ہیں اور کچھ بھی نہیں بولتی۔ مما مجھے نہیں پتا، آپ مجھے باہرلے ملک بھیجیں گی نا پڑھنے کے لیے؟ ہاں بیٹا، میں تمہیں باہر ہی بھیجوں گی پڑھنے کے لیے، تم ٹینشن نہیں لو۔ ویسے بھی ہمارے پاس اتنی زیادہ ساری جائیداد ہے، وہ ہم نے کہاں پر خرچ کرنی ہے؟ اگر اب تمہارے اوپر خرچ کریں گے تو بعد میں تم بھی تو کما کر ہمیں ہی تو دو گے، اور پھر ہم دوبارہ سے اتنی بڑی ساری چیزیں اکٹھی کر لیں گے۔ تم یاد رکھنا، تم نے گاڑی بھی لینی ہے، مجھے گاڑی بہت پسند ہے۔ جی میں لوں گا، بالکل لوں گا۔ دیکھنا آپ کو بھی ساتھ بٹھا کر گھماؤں گا، بہت مزہ آئے گا۔ کالو کی مما اور دوسرے پرندوں کی مما بھی انہیں باہرلے ملک بھیج دیتی ہیں، سب کہیں نہ کہیں پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں، لیکن رانو چڑیا اپنی مما کے پاس ہی رہتی ہیں۔ وہ ان کے کام میں مدد بھی کرواتی اور کالج جا کر پڑھائی بھی کرتی۔ رانو چڑیا پڑھائی میں بہت اچھی تھی، اس لیے اس کے بہت اچھے نمبر آتے تھے۔ دوسری طرف کالو کوا کی مما اور بابا دونوں اپنے بیٹے کے لیے بہت زیادہ پریشان تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بن جائے، اور اسی لیے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو باہر بھیجا تھا، لیکن ان کے سارے پیسے تو کالو کو باہر بھیجنے پر خرچ ہو گئے تھے، تو گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہی نہیں تھا۔ آپ باہر جا کر کچھ کھانے کے لیے لے آئیے نا، میرے پاس تو کچھ ہے بھی نہیں، میں کیا کھاؤں گی؟ ایک تو مجھے اتنی بھوک لگی ہوئی ہے، آپ تو کہیں سے کچھ بھی کھا لیتے ہیں۔ میں کہاں سے کچھ کھا لیتا ہوں، میرے پاس کون سا پیسے ہیں؟ تم نے سارے کے سارے پیسے تو اپنے بیٹے کو باہر بھیجنے میں خرچ کر دیے، اب میں کیا کروں؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے زیادہ باتیں نہیں سنائیں، باہر سے جا کے کھانا لے آئیں نا۔ آپ کو پتا تو ہے مجھے بھی بھوک لگی ہے، آپ کو بھی لگی ہے، آپ باہر سے جا کے لے آئیں۔ اچھا میں جا رہا ہوں، لڑائی تو نہیں کرو نا۔ تو کالو کوا کے بابا باہر کھانا ڈھونڈنے کے لیے چلے جاتے ہیں، لیکن ٹینشن کے مارے ان سے اڑا ہی نہیں جا رہا تھا۔ ان کا سر درخت سے ٹکرا جاتا ہے اور وہ وہیں پر مر جاتے ہیں۔ کالو کوے کی ماما انہیں کال کر کے بتاتی ہے، تمہارے بابا اب نہیں رہے بیٹا، تمہارے بابا نہیں رہے، تم آ جاؤ، واپس آ جاؤ، ایک دفعہ انہیں دیکھ تو لو۔ مما میں کیسے آ سکتا ہوں؟ یہاں پر اتنی زیادہ پڑھائی ہوتی ہے، مجھے بہت زیادہ کام ہوتے ہیں، میں آپ کیسے آ سکتا ہوں؟ آپ تو جانتی ہیں میں تھوڑا سا کماتا ہوں، اگر میں آ گیا تو واپس کیسے جاؤں گا؟ ابھی میرے پاس اتنے پیسے اکٹھے نہیں ہوئے ہیں کہ میں آ جاؤں اور یہاں سے واپس چلا جاؤں۔ آپ بابا کو خود ہی دفنا دیجئے نا کہیں پر، مجھے کیوں بتا رہی ہیں؟ بیٹا کچھ تو شرم کرو، وہ تمہارے بابا تھے۔ مما میں جانتا ہوں وہ میرے بابا تھے، اب وہ چلے گئے ہیں، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ کالو میری بات تو سنو، لیکن کالو تو کال کاٹ دیتا ہے اور سنتا ہی نہیں۔ کیسا نکلا میرا بیٹا، میں نے کیا سوچا تھا، اب مجھے سب کچھ خود ہی کرنا پڑے گا۔ کافی دن گزر جاتے ہیں، کالو کوا کی ماما اب خود اپنا کھانا ڈھونڈنے کے لیے جایا کرتی تھی۔ کیا حال ہے رانو کی مما، ٹھیک تو ہو نا؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، رانو میرا بہت خیال رکھتی ہے، وہ ہمیشہ میرے ہر کام کر دیتی ہیں۔ تم بتاؤ کیا حال چال ہے؟ ہاں میں بھی ٹھیک ہوں، بڑھاپے کی وجہ سے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے مجھ سے، سارا دن مجھے سارا کام خود ہی کرنا پڑتا ہے۔ اب تو گھر میں کوئی ہے بھی نہیں، کھانا بھی خود ہی ڈھونڈو، پھر اس کو بناؤ بھی، صفائی بھی، سب کچھ میرے اوپر ہی آیا ہوا ہے۔ میں ایک بوڑھی جان کیا کروں؟ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، آپ اپنے بیٹے کو واپس بلا لیجئے نا، اب تو اس کی پڑھائی مکمل ہو گئی ہوگی تو وہ یہاں پر آ کر نوکری کر لے گا نا۔ ہاں بات تو ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گی اس سے بات کرنے کی، اگر اس کا دل کیا تو آ جائے گا، اب میں کیا کر سکتی ہوں، ویسے کون سا وہ میری بات سنتا ہے۔ تو کالو کی مما کالو کے پاس کال کرتی ہیں، بیٹا
बेटा तुम वापस आ जाओ ना यहाँ पर, मेरा दिल नहीं लग रहा। तुम तो जानती हो अब तो तुम्हारे बाबा भी नहीं रहे, मैं यहाँ पर अकेली हो गई हूँ। मम्मा मैं जानता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं वहाँ पर कैसे आ सकता हूँ? मेरी यहाँ पर जॉब है ना। बेटा तुम यहाँ पर आकर जॉब कर लेना, ये तो गांव है, लोगों को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती होगी यहाँ पर डॉक्टर्स की, तो तुम आ जाओ यहाँ पर काम कर लो ना। मम्मा मैं आ जाऊँगा, लेकिन आपने मुझे क्लिनिक खोल कर देना पड़ेगा। हाँ हाँ मैं खोल दूंगी, थोड़े बहुत पैसे तो मैंने जमा किए हुए हैं, मैं खोल दूंगी। ठीक है मैं आ जाऊँगा, सिर्फ आपके कहने पर आ रहा हूँ। वैसे मेरा कोई दिल नहीं था, यहाँ पर मेरा बहुत अच्छा गुजारा हो रहा था। ठीक है बेटा आ जाना, तुम याद से आ जाना। रानो की मम्मा मेरा बेटा आ रहा है, तुम्हें पता है मेरा बेटा आ रहा है। जी जी मुझे पता चला, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आपके बेटे के लिए। कुछ दिनों बाद कालू भी आ जाता है, सब उसके इंतज़ार में एयरपोर्ट पर ही खड़े थे। हाँ भी कालू, वेलकम बैक तुम्हें हमारे गांव में वापस से। हम सब बहुत खुश हैं तुम्हें यहाँ पर देखकर, हमें दिली खुशी हुई है। कालू तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, तुमने बहुत अच्छा सा बैग भी पकड़ा हुआ है, लगता है वहाँ पर तुम्हारी बहुत अच्छी सी जॉब लगी हुई है। हाँ हाँ बहुत अच्छी जॉब लगी हुई है, दूर रहो मुझसे। ये गांव के लोग पता नहीं कितने जरासीम लगे होते हैं। तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें इतने ज़्यादा वायरस बैक्टीरिया पता नहीं क्या क्या होता है। तो मुझसे दूर रहो, बल्कि बात भी नहीं करो, चुप हो जाओ। ये क्या कह रही हो तुम? हम नहाकर घर से आए हैं। बेशक तुम लोग जितना मर्जी नहा लो, लेकिन मैं डॉक्टर हूँ, मुझे पता है हर जगह पर कुछ ना कुछ वायरस तो होता ही है। बस दूर रहो मुझसे, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे कुछ भी कहने की। बेटा क्या माँ, आप चले मेरे साथ घर। अब क्या कर सकते हैं ऐसे लोगों का। आप चले मेरे साथ घर जाकर बात करेंगे, जो भी बात करनी होगी। घर पहुंचने के बाद माँ ये कैसा कमरा रह गया है आपके पास? आपके पास अच्छा सा घर नहीं है अब? नहीं बेटा, सारे के सारे पैसे तो तुम्हारे बाहर जाने पर खर्च हो गए थे, हमारे पास कुछ भी नहीं है, अब यही सिर्फ एक छोटा सा कमरा रह गया है। चलो ठीक है, अब कुछ दिन यहीं पर गुजारा कर लूँगा मैं, और उसके अलावा क्या कर सकता हूँ मैं। आप खाना ला दीजिए ताकि मैं यहाँ पर बैठकर खा लूँ। लो बेटा तुम ये खाना खा लो, मैंने खुद बनाया है, बहुत मेहनत लगी है। माँ ये कैसा खाना बना दिया है आपने? इसकी तो शक्ल भी इतनी अजीब है, मुझे नहीं अच्छा लगा। बेटा मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, इसमें मेरा बहुत ज़्यादा प्यार भी शामिल है, तुम खाकर तो देखो एक बार। माँ मुझे पता है, आपने ये यहीं कहीं से जंगल से उठा लिया होगा और इसको ऐसे ही बना दिया होगा, धोया भी नहीं होगा आपने इसको। नहीं बेटा, मैंने किया था सब कुछ। बस ठीक है, मुझे पता है इसमें बहुत ज़्यादा वायरस होंगे, मुझे नहीं खाना ये, मैं बाहर जाके किसी रेस्टोरेंट से खा लूँगा। आप ही खा लेंगे, मैं बाहर से खा लूँगा। ये कहकर कालू वहाँ से चला जाता है और रानो चिड़िया के रेस्टोरेंट पे आ जाता है। सुनो, कोई है यहाँ पर? मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए। ये दिखने में तो काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट लग रहा है, अगर कोई है तो आके मुझे कुछ खाने के लिए ही दे दो। जी सर, हम यहाँ पर आपकी सर्विस के लिए ही हैं, आप बताइए आपको क्या खाना है। हाँ मुझे पता था, तुम यहीं पर कोई वेटर की जॉब ही कर रही होगी। तुम्हारे पास कहाँ इतने पैसे थे गरीब लोगों, जो तुम अमीर बन जाओ। रेस्टोरेंट में सर्विस? बस मुझे नहीं खाना। मैं तो जानता हूँ तुम्हारे हाथों में कितने ज़्यादा वायरस हैं, मुझे भी तो सारे के सारे वायरस चिपक जाएंगे। मुझे नहीं खाना, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अच्छा, आप एक दफ़ा ट्राई तो करके देखें, हमारे रेस्टोरेंट का खाना बहुत अच्छा होता है। तभी वहाँ पर वेटर आ जाता है। मैम मेरी बात तो सुने, वो जो रूम नंबर 106 में आदमी रहता है वो किराया देकर गया है, उसका क्या करें? आप जाकर ये मैम को दे दीजिए, जानते हैं ना मेरी मम्मा को, उनको जाकर दे दीजिए, वो रख लेंगी, वो ऑफिस में ही बैठी होंगी।
ठीक है मैम, जैसे आपकी मर्जी, मैं उनको ही जाकर दे आता हूँ। क्या क्या तुम इस होटल की मालकिन हो? जी बिल्कुल, आपको नहीं पता था? नहीं, मुझे नहीं पता था। अगर मुझे पता होता। अच्छा चलो छोड़ो, जो भी है, इतना भी अच्छा होटल नहीं है तुम्हारा। मैं जा रहा हूँ। वैसे भी क्या ही दे दोगी तुम मुझे यहाँ पर? ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन हमारे रेस्टोरेंट पे आने के लिए शुक्रिया। ऐसे ही रानो सबसे बहुत प्यार से बात किया करती थी, इसलिए उसका रेस्टोरेंट बहुत अच्छे से चल रहा था। दूसरी तरफ कालू कौवा अपनी क्लिनिक में बैठा हुआ था। कोई आता ही नहीं है। माँ तो कह रही थी यहाँ पर काफ़ी परिंदे बीमार होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो कोई आ ही नहीं रहा। क्या फ़ायदा मेरा यहाँ पर आने का? फ़ायदा तो बहुत है। वहाँ पर मुझे इतना ज़्यादा काम करना पड़ता था, फिर थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे जिस पर मेरा गुजारा हो जाता था। यहाँ पर फ़ायदा तो है, सारा काम तो माँ कर देती हैं। ये सब कालू सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पर टूनी आ जाती है। डॉक्टर साहब, मेरे गले में बहुत ज़्यादा दर्द है। पता नहीं मेरे गले में क्या हो गया है। अच्छा, तुम्हारे गले में दर्द है? एक सेकंड रुको। कालू जल्दी से सर्च करता है और गले के दर्द की वजह बता देता है। तुम्हारे गले में दर्द इसलिए है क्योंकि तुमने ठंडा पानी पिया था। घर जाकर गरम गरम पानी पी लेना, तुम ठीक हो जाओगी। बस आग से उतारना और फौरन से पी लेना। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। जैसे ही टूनी जाने लगती है, कालू कहता है, मेरी फीस तो देकर जाओ। क्या तुम ऐसे ही जा रही हो? फीस? किस चीज़ की फीस? आपने तो कोई दवाई दी ही नहीं है मुझे। हाँ हाँ, मुझे पता है, मैंने तुम्हें मेडिसिन नहीं दी, लेकिन तुम मेरे पास आई हो। मेरे पास आने की फीस है, वो तुम्हें देनी ही पड़ेगी। मैं कैसे दूँ? तुमने मुझे कोई दवाई तो नहीं दी। बस मैंने कहा है ना, देकर जाओ फीस। ठीक है, रख लो। दोबारा तो मैंने नहीं आना तुम्हारी क्लिनिक पर। अच्छा ठीक है, जाओ जाओ। बस कालू हर किसी से ऐसे ही बदतमीजी से बात किया करता था। जब घर जाकर टूनी ने गरम गरम पानी पिया तो उसका गला सारा का सारा जल गया। बेचारी टूनी अब कुछ कर भी नहीं सकती थी। काफी दिन गुजर गए। एक दिन कालू के क्लिनिक पर चील आ गई। हाँ भाई, मुझे दवाई चाहिए। है तुम्हारे पास? जी जी, मेरे पास दवाई है। आपको किस चीज़ की दवाई चाहिए, आप मुझे बताएं। मुझे दवाई चाहिए। दरअसल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं क्या करूं? मुझे दवाई चाहिए। ठीक है, कहीं आपको बुखार तो नहीं है? हाँ, मुझे बुखार है। तो मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड रुकें। कालू देखता है और बताता है, आपको घर जाकर ठंडे पानी से नहीं नहाना, आपने गरम गरम पानी से नहा लेना है और फिर जलते हुए कोयले के ऊपर बैठ जाना है। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ये क्या कह रहे हो तुम? ये तो बहुत अजीब सा लग रहा है। ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं सारी जल जाऊंगी। नहीं, आप जलेंगी नहीं। ये हमारा एक अलग सा ही एक तरीका है जिससे चील ठीक हो जाते हैं। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ठीक है, मैं ट्राई कर लूँगी एक बार। फीस तो दे दीजिए। कौन सी फीस? मैं किसी को फीस नहीं देती, और दोबारा मुझसे मांगने की हिम्मत की ना तो तुझे काट के खा लूँगी। ठीक है, मैं नहीं मांगता आपसे फीस। ठीक है ठीक है। फिर चील उठ जाती है और जैसे ही घर जाकर चील गर्म पानी से नहाती है, वो सारी की सारी जल जाती है। उसके जिस्म पर बड़े बड़े जख्म हो जाते हैं। हाँ, ये मुझे क्या हो गया? मैंने तो कालू के कहने पर अमल किया था, ये मुझे क्या हो गया? अब तो मैं सारी ही जल गई हूँ। चील ऐसे कर करके बातें कर रही थी। अब मैं क्या करूं? मैं एक दफ़ा ठीक हो जाऊं, फिर मैं कालू को नहीं छोड़ूंगी। मैं उसको मार दूंगी, मैं उसकी पूरी दुकान जला दूंगी, मैं पुलिस में जाके कंप्लेन करूंगी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। चील बिल्कुल ठीक होकर कालू की दुकान पर जाती है और पूरी की पूरी दुकान जला देती है और पुलिस स्टेशन में जाकर कालू के खिलाफ कंप्लेन करती है कि वो जाली डिग्री पर डॉक्टर बनकर बैठा है। तो पुलिस आकर कालू को अरेस्ट कर लेती है।
जेल में पड़ा कालू खुद से बातें कर रहा होता है। काश मैंने ये सब कुछ ना किया होता। मैंने पता नहीं ये क्या कर दिया। मैंने सब